a live press conference of Love Agarwal, the health secretary. Listen to what he has to say. Abara, can you hear me now? Okay. So this is a brief presentation on the status of COVID-19 in India. Can we go to the next slide, please? ओके मित्रों, जो पहली चीज हमें ध्यान में रखनी है वो ये कि हम विश्व के जनसंख्या के आधार पर दूसरे सबसे बड़े देश हैं। जब भी हम कोविड के किसी भी संख्या की बात करते हैं, चाहे कुल कोविड के केसेस हों या कुल एक्टिव केसेस हों या कुल मृत्यु के आंकड़े हों, ये नहीं भूलना चाहिए कि वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये स्लाइड ये दिखाती है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने कोविड के मैनेजमेंट में अभी तक संतोषप्रद कार्य किया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू हियर इज that in spite of a population of 1.3 billion people, India has been able to manage COVID relatively well. Now, when I say that we have been able to manage this disease, this infection relatively well, what is it that I am implying? What we are trying to explain here is that if you look at cases per million population, it still remains amongst the lowest in the world. Today we have 538 cases per million population. This is as per WHO situation report. And you have figures for other countries also, from Americas, from Europe, and from other parts of the world. We are trying also to emphasize the point that case per million population in some countries are at least 16, 17 times more than what it is in India. Similarly, if we look at death per million population, again, the scenario in India is amongst the lowest in the world. We have 15 deaths per million population, whereas we have countries where it is 40 times as much. This is another fact that I would like to emphasize for your consideration, which is that if you look at the gap between these two worms here, representing the active cases, that is the cases which are presently either hospitalized and under treatment or are at home isolation being monitored. So that group of people and recovered cases, people who have recovered and gone home, that gap is progressively increasing. So the gap between active cases and recovered cases is progressively increasing. Today, we have 4,76,000 odd recovered cases and only 2,69,000 odd active cases. So when we talk of caseload of COVID in India, caseload is 2,69,000 people. That is important because this tells us that at the end of the day, we have managed a situation where our healthcare infrastructure is not unduly burdened, is not creaking because of the pressure. So that is the significance of this slide. Now, in absolute numbers, we have told you that the active cases are 2,69,789 and recovered cases are 4,76,378. यहाँ हम ये निवेदन आपके समक्ष करना चाहते हैं कि जो रिकवरीज हैं वो लगभग दुगनी 1.75 टाइम्स हो गई हैं एक्टिव केसेस की तुलना में। यानी जितने लोग अस्पतालों में एडमिशन के लिए जा रहे हैं उससे कहीं अधिक संख्या में लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये हम आपको रिकवरी रेट की जो बदलने की दर है, रेट ऑफ चेंज आपको दिखा रहे हैं, कैसे रिकवरी रेट राइज कर रहा है। आप देखेंगे कि 10% से ये 26% हुआ, फिर 47% हुआ 31 मई तक,
और 9 जुलाई को ये 62% हो गया है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है. द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिकवरी इज एप्रिशिएबल. ये कुछ जनसंख्या से संबंधित और आयु वाली जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं. इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि आप देखें कि 14 बरस से कम की आबादी का हिंदुस्तान की कुल आबादी में क्या प्रतिशत है, तो वो 1%, वो 35% है. उस 35% आबादी में कोविड डेथ्स 1% हुई हैं. 15 से 29 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 18% हैं और इस आयु वर्ग में कोविड की जो डेथ्स हैं वो केवल 3% हुई हैं. 30 से 44 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 22% है और इस एज ग्रुप में कोविड की जो डेथ्स हैं वो 11% है. तो अगर आप इस पूरे ब्लॉक को एक साथ देखें, यानी 14 साल से कम के आयु से लेकर 44 वर्ष की आयु तक के लोग, तो इसमें जो कोविड से रिलेटेड डेथ हैं वो केवल 15% हुई हैं. लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक हाई रिस्क पॉपुलेशन भी है. ये वो लोग हैं जो 55 वर्ष से ऊपर की 45 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं. 45 से 59 वर्ष की आयु में आप देखेंगे कि कुल जनसंख्या का ये 15% है, जबकि इसमें कोविड की जो डेथ है वो 32% है. 60 से 74 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 8% हैं, लेकिन इसमें कोविड से जो डेथ हुई हैं वो 39% है. और 75 वर्ष से अधिक आयु के उम्र दराज जो लोग हैं वो कुल आबादी का 2% हैं, लेकिन यहाँ जो कोविड से डेथ हुई हैं वो 14% है. यानी इसका निचोड़ ये है कि भारतवर्ष की 25% आबादी जो 45 वर्ष से लेकर ऊपर की आयु की है, 75 वर्ष से ऊपर तक की, उसमें 85% कोविड रिलेटेड डेथ हुई हैं. तो ये आयु वर्ग है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. भारत सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को भी. इसको हम फिर फर्दर आपको और ग्रैनुलर बेसिस पर ये बता रहे हैं कि पीपल हु आर बिटवीन 60 to 74 years of age, they constitute 8% of India's total population. However, they also show 39% of COVID-linked deaths, and people who are more than 75 years are 2% of India's population, but they show 14% of COVID deaths. So this is a brief summary that I wanted to present before you. Thank you. Thank you very much, sir. Now I request the representative of ICMR, ma'am, please. So ICMR has been continuing its efforts to ramp up the testing capacity in the country and also making testing available at even the lower levels, the district level, and increasing the outreach of testing to the best of its capacity. In addition to the RT-PCR test, we have deployed the TrueNat and CBNat based testing also. And moving a step forward, very recently, ICMR also has validated and approved the use of a rapid antigen point of care test, which is now validated, recommended for use, and is also being used now in the containment zones of various states as well as in the hospitals. So with this, we really hope to follow the approach of test, track, and treat. Because if we take this testing to the grassroots level, the number of individuals, infected individuals, mild symptomatic or even asymptomatic individuals that you'll be able to catch really increases. And this is likely to catch individuals in the early stage of infection and also lower the burden on hospitals. So this is one strategy which has taken up well. We also came up with advisories, revised advisories on testing, which was loaded up on ICMR website on 25th of June.
and subsequently we always also have come up with a very explicit advisory on the use of antibody based IgG assays, which are recommended as a surveillance tool, and also the advisory for that is there on ICMR website. It has been disseminated to the states. Multiple letters, joint letters from Secretary Health and Secretary Department of Health Research have been sent. And the other step that ICMR has very recently taken up for increasing the testing is that all the NABH hospitals and the NABL approved labs, as well as all the government hospitals, have been approved for conducting the antigen based test. And we already have approved hundreds of applications for the antigen based assay testing, and further approvals are in progress. And also the initial criteria of ICMR was that all the private labs who are intending to undertake COVID-19 testing, they were supposed to submit a NABL accreditation certificate, completed one. But now, in order to enhance the testing and speeden up the liberalization of the testing, we have now allowed the private labs to apply for NABL and in parallel submit their application to ICMR. We give them a 1 month time period in which they can complete the NABL accreditation and submit their completed accreditation to us. So these are quite a few steps that we have taken. The ramping up of number of labs is happening at a very fast pace. As I speak today, we have 1132 labs which are operational, including CBNAT and TrueNAT labs also, and more are in pipeline through various efforts of ICMR as well as the mentor institutions which have been identified in centers of excellence. So that effort is ongoing. Our number of tests have increased, and on an average we are testing more than 2.6 lakhs of samples per day, and that we hope to see a further rise by the use of the antigen tests. Thank you. Thank you very much, ma'am. Now I request the representative of the Ministry of Home Affairs, please, ma'am. नमस्कार। जैसे आपको पता है, अनलॉक 2 के जो नए दिशा निर्देश हैं वो 1 जुलाई 2020 से लागू हो चुके हैं। इन नए दिशा निर्देशों के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से और अधिक गतिविधियों को शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है, परंतु 31 जुलाई 2020 तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का सख्ती से पालन होगा। अब लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों को अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का अनुपालन बहुत ही आवश्यक हो गया है, जैसे कि मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, शराब या तंबाकू के सेवन की मनाही इत्यादि। गृह मंत्रालय लगातार दिशा निर्देशों के अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी रख रही है। जहां कोई भी समस्या आती है या दिशा निर्देशों के उल्लंघन के बारे में रिपोर्ट मिलती है, उसे तुरंत ही संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय द्वारा उचित कार्रवाई करने के लिए राज्यों को परामर्श या निर्देश भी दिए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में कोविड-19 की स्थिति में सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा उच्च स्तर पर नियमित रूप से संबंधित राज्यों के साथ बैठक की जा रही है। एनसीआर क्षेत्र में संगठित प्रयास द्वारा ही हम कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी ढंग से कार्यवाही करने में सफल हो सकते हैं। इन बैठकों में राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल हैं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि दिल्ली के निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों के उपचार की दरों पर नियंत्रण रखना, राजधानी में अतिरिक्त बेड्स उपलब्ध कराना, रैपिड एंटीजन प्रणाली का उपयोग करके टेस्टिंग बढ़ाना, कंटेनमेंट जोन का ध्यानपूर्वक सीमांकन करना, सभी संक्रमित व्यक्तियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, आईटी सिस्टम्स का प्रभावी ढंग से उपयोग करना तथा एम्स दिल्ली कोविड टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन की सुविधा शुरू करना
और ये जो एम्स दिल्ली कोविड टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन की सर्विस है, आज ये पूरे देश के जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं वो इस सुविधा से क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। संयुक्त प्रयासों से दिल्ली में कुछ हफ्तों में काफ़ी सुधार हुआ है। दिल्ली में रैपिड एंटीजन पद्धति का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। टेस्टिंग की भी क्षमता को बढ़ा दिया गया है। 8 जुलाई तक 6,79,831 टेस्ट कर दिए गए हैं, यानी 10 लाख की आबादी पर 35,780 टेस्ट। अब प्रतिदिन लगभग 20,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि होने पर भी एक्टिव केसेस पर नियंत्रण है। 9 जुलाई को दिल्ली में लगभग 23,452 एक्टिव केसेस हैं। रिकवरी रेट 72% से अधिक है। डबलिंग रेट बढ़कर 29.7 डेज यानी कि लगभग 30 दिन हो गई है। 1 जून को दिल्ली में जहां 4,456 हॉस्पिटल बेड उपलब्ध थे, आज 15,096 बेड उपलब्ध हैं। 8 जुलाई को इनमें से लगभग 10,237 बेड खाली थे, यानी कि लगभग 68%। ये सब आंकड़े मैं इसलिए साझा कर रही हूं क्योंकि हम दिल्ली वासियों को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करने के लिए प्रयासरत हैं। DRDO द्वारा स्थापित सरदार वल्लभ भाई कोविड हॉस्पिटल इस पूरे अभियान में एक गेम चेंजर के रूप में सामने आया है, जिसने दिल्ली में ही नहीं देश में पहली बार थोड़े ही समय लगभग 12 दिन में श्रेष्ठ सुविधा दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध करा दी है। सरकार की ओर से हम फिर से DRDO, आर्म्ड फोर्सेस और निजी क्षेत्र के जो प्रमुख योगदानकर्ता थे उनकी तरफ अपना आभार प्रकट करते हैं। राधा स्वामी सत्संग, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और दिल्ली सरकार ने मिलकर जो 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर को क्रियान्वित किया है, वो भी इस विशाल स्तर पर एक बहुत ही अनूठा और देश का सर्वप्रथम प्रयास रहा है। हमारा सबसे आग्रह है कि सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग दें तथा राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें, ताकि हम सब मिलकर कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल हों। धन्यवाद। धन्यवाद। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऑनलाइन हैं, हम आपके भी क्वेश्चंस लेंगे। सर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आजकल प्लाज्मा की बात हो रही है। ऑनलाइन क्वेश्चन जो है, हैज़ बेनिफिट ऑफ प्लाज्मा थेरेपी बीन इन्वेस्टिगेटेड एनफ फॉर द ब्लैंकेट अलाउंस? मैं आपकी जानकारी में ये तथ्य लाना चाहूँगा कि प्लाज्मा के उपयोग का निर्णय जो ट्रीटिंग क्लिनिशियन हैं वो लेते हैं, और प्लाज्मा थेरेपी को भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी क्लिनिकल प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस में इन्वेस्टिगेशनल थेरेपी के रूप में दर्शाया है। किन मामलों में प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाना है, ये भी क्लिनिकल गाइडलाइंस जो भारत सरकार ने जारी की हैं स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। प्लाज्मा की उपलब्धता के लिए अलग अलग राज्य सरकारें अलग अलग प्रयास कर रही हैं। कुछ लोग रैंडमाइज्ड प्लाज्मा ट्रायल की ओर भी इंगित करते हैं। मुझे लगता है कि ये जो ऑनलाइन प्रश्न है संभवतः ये वो भी पूछना चाह रहे हैं। तो रैंडमाइज्ड जो ट्रायल हो रहा है प्लाज्मा थेरेपी का, वो ICMR के तत्वावधान में हो रहा है, अंडर द एजिस ऑफ ICMR। इट हैज़ वेरियस पार्टिसिपेटिंग हॉस्पिटल्स, और उसमें लगभग 452 मरीजों पर रैंडमाइज्ड ट्रायल हो रहे हैं। अभी भी, हालांकि वो ट्रायल प्रारंभ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी जो इच्छुक अस्पताल हैं उन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए ICMR के समक्ष अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं। और हमारा ये भी कहना है कि जहां इंडिविजुअल केसेस में ट्रीटिंग क्लिनिशियन प्लाज्मा थेरेपी के लिए जाते हैं, वहां न तो ICMR और न ड्रग्स कंट्रोलर जनरल की किसी फॉर्मल अप्रूवल की आवश्यकता है। 99। आमिर हूँ, न्यूज़ नेशन से। मेरा दो सवाल है, एक ICMR से, एक सर आपसे। सवाल ये कि क्या ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है इसका,
इसको लेकर के काफ़ी क्वेरीज की जा रही हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ या नहीं हुआ है। और ICMR से सवाल है कि अभी हाल ही में एक नोट आया था जिसमें कहा गया था कि 7 तारीख को वो जो क्लिनिकल ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा, जो कोविड की वैक्सीन बनी है, और उसके बाद 15 तारीख को से लॉन्च किया जाएगा। क्या वो सही था? अगर सही था तो क्या है उसमें, और अगर वो गलत था तो क्या किस तरह की मिस्टेक हुई है? मैं दोनों ही प्रश्नों पर कुछ प्रारंभिक जानकारी आपको दे देता हूं, उसके बाद ICMR अगर चाहेंगे तो मुझे सप्लीमेंट करेंगे। पहला प्रश्न है कम्युनिटी ट्रांसमिशन के संबंध में। आज भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज ऐसे हैं जहाँ लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स हुई हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 49 डिस्ट्रिक्ट्स alone account for 80% of कोविड केसेस। तो जहां 733 से अधिक जिलों वाले देश में 49 जिले ही 80% से अधिक केसेस को दर्शा रहे हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। हमारा ये भी मानना है कि जहां भी एक्टिव केसेस होते हैं, यदि हम निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें तो हम 72 घंटे में यानी 3 दिन में जितने भी क्लोज कॉन्टैक्ट हैं एक्टिव केसेस के, उनको ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा वातावरण जहां आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस और ट्रैक करने की स्थिति में हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। अब जो दूसरा प्रश्न था आपका, मैं उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य, द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड, देन वी विल कम टू व्हाट ICMR इज डूइंग। इस समय पूरे विश्व में 100 से अधिक वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग ट्रायल की स्टेज पर हैं। भारत के लिए संतोष की बात यह है कि 2 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि एंटायरली इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट हैं। इसमें एक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन है और दूसरी मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ सहयोग कर वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रहा है। इन दोनों वैक्सीन्स ने एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडीज पूरी कर ली हैं प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद। एनिमल टॉक्सिसिटी की जो स्टडीज़ हैं वो होती हैं चूहे पर, वो होती हैं गिनी पिग पर, वो होती हैं रैबिट पर। सो दीज स्टडीज़ हैव ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड एंड द टॉक्सिसिटी डाटा in respect of both these vaccines has been shared with the Drugs Controller General of India. Thereafter, the Drugs Controller General of India has permitted these 2 vaccines to go in for phase 1 and phase 2 clinical trials. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.